श्री गोकुल नाथ की चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। गोकुलस्य सदा गोप्ता पुष्टे सुपथरक्षिता जनिता तुर्यवंशस्य गोकुलेशं नमाम्यहम्। श्रीगोकुलपतेर्नित्यं शुभदम् आस्पदं महत् श्रीवाल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयन्नुमः। यस्य दर्शनमात्रेण भवेन्नेत्रोत्सवो नृणां सदानन्दस्वरूपं तं देवकी नन्दनं नुमः। निःसृत्यन्मुखाम्भोजात् दर्शनं दर्शनं भवेत् पथ संदर्शकं भक्त्या देवकी नन्दनं नुमः। अविद्यारूप संसारे सुविद्या प्रापको जनान् देवकी सुतपादानां पादरेणुर्प्रसीदतु। बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु। ध्यानासमर्थ जीवानाम् अस्माकं सर्वदा स्वतः।
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिश्चता षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधारदये मम।
जनिता सूर्यवंशस्य गोकुलेशं नमामि तं श्रीगोकुलपते नित्यं शुभदमास्पदं महत् श्रीशल्लभमते निष्ठं तुर्यपीठं वयं नुमः यस्य दर्शनमात्रेण भवे नेत्रोत्सवोर्ण सदानन्दस्वरूपं तं देवकीनन्दनं नुमः अविद्यारूपसंसारे सुविद्या प्रापको जना देवकी सुदपादानां पादरेणु प्रसीदतु बुद्धिप्रेरक कृष्णस्य पादपद्मं प्रसीदतु ध्यानार्थ समर्थ जीवाना अस्माकं सर्वदा स्वतः। श्री गोकुलनाथ की जय। सुंदर वालो अति मनोहर श्री गोकुल नो नाम वालो श्री गोकुल नो नाम केसर तिलक सोहामणु जीरे केसर तिलक सोहामणु जीरे अति छगाली का
દંડવત પ્રણામ અને સર્વે વૈષ્ણવોને જય જય શ્રી ગોખલેશ. અરે જય જય શ્રી ગોખલેશ, શું ચાલે છે? જય જય શ્રી ગોખલેશ દે, પ્રભુ કૃપાથી બધું સરસ જ ચાલે છે. અરે જીત, તને ખબર ગયા રવિવારે પાઠશાળામાં શું કરાવ્યું હતું? અરે ગયા રવિવારે પાઠશાળામાં શ્રી ગોકુલનાથજીના 78 ભગવતીઓ વિશે સમજ આપી હતી. હા, તને ખબર છે શ્રી ગોકુલનાથજીના અતરંગ ભગવતીઓ ગોધરાના પણ થઈ ગયા? હા, મને પણ ખબર છે. હા, હજુ બોલ, આપણે વાત કરીએ. અલા વો મોટા ભાઈ. અરે આપણને પાઠશાળામાં શીખવાડ્યું ન હતું? મોટા ભાઈજીનું નામ તો તે જાણ્યું જ હશે ને, તેમનું મૂળ નામ વજેરામજી હતું. હા, બીજા કેટલાક ભગવતીઓ થઈ ગયા કે જેમ કે સૌજીભાઈ બ્રાહ્મણ પણ ગોધરાના હતા. તેમની પત્ની અને સૌજીભાઈ બ્રાહ્મણ પણ શ્રી ગોકુલનાથજીમાં અનન્ય હતા. અરે તમને ખબર છે, જ્યારે શ્રીજી ગુજરાત પ્રવાસે નીકળ્યા હતા ત્યારે ગોધરામાં શામળદાસને ઘરે પધાર્યા હતા. અરે તમને ખબર છે દેવકીબાઈ પણ ગોધરાના વતની હતા? અરે શ્રી મોટાભાઈજી શ્રી ગોકુલનાથજીની સેવામાં તન્મય રહેતા. તેમનું જીવન સાદું અને દીનતાવાળું હતું. હા, સૌજીભાઈના જીવન વિશે તો તમને ખબર જ હશે ને. તેમણે શ્રીજીના દર્શન માટે પોતાનું ગામ છોડી શ્રી ગોકુલવાસ કર્યો હતો. ત્યાં તે શ્રીજીના ખાસાચંદની સેવા કરતા હતા. જ્યારે શ્રીજી ગોધરામાં શામળદાસને ઘરે પધાર્યા હતા ત્યારે તેમનો એક અનન્ય સ્ત્રી હતી. તેમનો મનોરથ શ્રીજીનો મનોરથ મોતીની આરતીથી વધાવ્યો હતો. અરે દેવકીબાઈના જીવનમાંથી આપણને અનન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. આપણે પણ આવું કંઈ શીખવું જોઈએ. આ ભગવદીઓને હું નમન કરું છું. અરે મોટાભાઈજીએ તો શ્રીજીના દર્શન માટે પોતાનું ઘર છોડ્યું. ત્યારે તેમની માતા ખૂબ ચિંતા કરતા, પણ ત્યારે તે કહેતા, મારી માતાશ્રીને કહેજો આટલી ચિંતા ના કરે, પ્રભુ સર્વસમર્થ છે. હા, સૌજીભાઈ બ્રાહ્મણ પણ ગોકુળ ગયા પછી તે શ્રીજીને કહેતા કે હું તમારો છું, પરંતુ શ્રીજી તેમને પોતાનો માને છે કે નહીં તેવી શંકા રહેતી. એક દિવસ તેમણે શ્રીજીને કહ્યું કે આપ શ્રી આપણા મુખ્ય મને કહો કે હું તમારો છું, તેથી મારું મન આપણા ચરણકમળમાં દ્રઢ થાય. ત્યારે શ્રીજીએ તેમને નિકટ બેસાડીને પૂછ્યું કે તારા ગામમાં કેટલા લોકો રહે છે? ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું ત્યારે સૌજીભાઈએ કહ્યું અનેક લોકો રહે છે. ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું કે તે બધા કેમ અહીંયા ના આવ્યા અને તું એકલો જ આવ્યો? ત્યારે સૌજીભાઈએ કહ્યું એ તો મને ખબર નથી. ત્યારે શ્રીજીએ કહ્યું કે તું અમારો છે, જે અમારા છે તે જ અમારી પાસે આવે છે, જે અમારા છે તે જ અમારી પાસે આવે છે, માટે તું જરાય ચિંતા ના કરીશ. આવા ભગવદીઓને સત પ્રણામ. અરે તમને ખબર છે, જ્યારે શ્રીજીનો શામળદાસની પત્નીનો મનોરથ પૂર્ણ થયો હતો, એમ આપણે પણ અનન્ય થઈશું તો આપણો પણ મનોરથ શ્રીજી જરૂર પૂર્ણ કરશે. આવા ભગવતીઓને સત નમન. અરે મોટાભાઈએ છે ને પોતાનું ગામ છોડી ભગવતીઓનો સંગ કર્યો. ત્યારે જ તેમને શ્રીજીના અલૌકિક સ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન થયું અને લૌકિક આસક્તિ દૂર થઈ. જ્યારે તે ગોકુળમાં આવી રમણ રેતીમાં શ્રીજીના વિરહમાં જળ અને અન્નનો ત્યાગ કર્યો, ત્યારે શ્રીજીથી પણ આ વિરહ સહન ન થતાં તેમને સ્વદર્શન આપી તેમની ત્વરતગ્નિ દૂર કરી. આથી આપણે આજથી પ્રણ લઈએ કે દર રવિવારે આપણે પાઠશાળામાં જઈને આવું નવું શીખીએ. આપણને પ્રભુ કૃપાથી બધું જ આવડી જશે. બોલો શ્રી ગોકુલનાથ કી જય. દંડવત પ્રણામ. આજે હું તમને માળા તિલક વિશે કાંઈક કહીશ. શ્રી ગુસાઈજીના 7 લાલમાંથી ચતુર્થ લાલ શ્રી ગોકુલનાથજી તે યશ સ્વરૂપ છે. જેમ વાયુથી રેતી ઉડી જાય છે તેવી જ રીતે તુલસીની માળા જોઈને યમરાજના દૂતો નાસી જાય છે. તુલસીની માળાનું વર્ણન અનેક શાસ્ત્રોમાં કીધું છે. તુલસી સમાન બીજું કોઈ ઉત્તમ પત્ર જ નથી. કલયુગમાં જો તુલસીની માળા પહેરીને ભગવાનનું જો કંઈ કાર્ય કરવામાં આવે છે તેને કરોડ ગણું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. ચિદ્રુપ એક પાખંડી બ્રાહ્મણ હતો. ચિદ્રુપે ઉજ્જૈનમાં ગુફામાં યોગ સાધના કરી હતી. તેને પોતાના મંત્ર શક્તિથી મેલી વિદ્યા પ્રાપ્ત કરી હતી. ગુફામાં અંધારું હોવા છતાંય તેને પોતાના મંત્ર શક્તિથી ગુફામાં પ્રકાશ લાવી દીધો. તે જોઈ બાદશાહ અને તેમના બધા જ માણસોની આંખો અંજાઈ ગઈ. બાદશાહ જહાંગીર ખૂબ પ્રભાવિત થઈ ગયા અને તેને મોં માંગ્યું ઇનામ આપવાની જાહેરાત કરી.
ચિદ્રુપ વૈષ્ણવ પ્રતિ હંમેશા વેર રાખતો હતો. વૈષ્ણવ સાથેની માનહાનિથી ચિદ્રુપ રોષે ભરાયો હતો. એવી રીતની મનની ઈચ્છા મુજબ તેને વૈષ્ણવના માળા અને તિલક ઉતારવાનું વચન બાદશાહ પાસેથી માંગી લીધું. બાદશાહે હુકમ કર્યો કે આજ પછીથી કોઈએ માળા અને તિલક કરવા નહીં. આ વાતની જાણ શ્રી ગોકુલનાથજીને થઈ. શ્રી ગોકુલનાથજીએ કહ્યું, જેને આ માર્ગ પ્રગટાવ્યો છે તે જ આ માર્ગની રક્ષા કરશે. વૈષ્ણવોની માળા ઉતારવા માટે ચિદ્રુપ મથુરા આવ્યો. શ્રી ગોકુલનાથજી 70 વર્ષની ઉંમરે ભર ચોમાસામાં ફક્ત ધર્મનું રક્ષણ કરવા માટે કાશ્મીર જવા રવાના થયા, કારણ કે બાદશાહ જહાંગીર તે વખતે કાશ્મીરમાં હતા. શ્રી ગોકુલનાથજીએ સર્વ સુખ, સંપત્તિ, વૈભવ બધું જ છોડી દીધું. ધન્ય છે શ્રી ગોકુલનાથજીને. હવે બાદશાહની માનીતી બેગમ મનીબાઈએ કહ્યું, તમે પવિત્ર વસ્તુઓનો ત્યાગ કરવાની ફરજ પાડશો નહીં. બધા જ વૈષ્ણવોએ નક્કી કર્યું કે આપણે ચિદ્રુપ સામે નહીં ઝૂકીએ. શ્રી ગોકુલનાથજીએ બાદશાહને કહ્યું, બાદશાહ સલામત હો. સૂર્ય કદાચ પૂર્વની જગ્યાએ પશ્ચિમથી ઉગી શકે, અડગ મેરું ચલાયમાન થઈ જાય, પરંતુ કોઈ પણ સંજોગોમાં અમારા કંઠેથી માળા ન ઉતરે. આવો અડલ નિશ્ચય સાંભળીને તેમને ગોકુલ છેડી દેવાનું કહ્યું. શ્રી ગોકુલનાથજીએ માળા ખાतिर ગોકુલ છોડી દીધું અને સોરમજી પધારી ગયા. ત્યારબાદ જ્યારે બાદશાહને અશરફ ખાને કહ્યું, ચિદ્રુપ એક પાખંડી છે, તેને ધોકાગડીથી તમારી પાસેથી વૈષ્ણવના માળા અને તિલક ઉતારવાનું વચન માંગી લીધું છે. ત્યારે બાદશાહને ગોકુલ વેરામ દેખાયું. ત્યારે તેમને પોતાના ભૂલ અને દોષ સમજમાં આવ્યા. ત્યારબાદ તે સોરમજી ગયા અને શ્રી ગોકુલનાથજીની સામે માફી માંગી અને તેમને કહ્યું, આપ શ્રીને ગોકુલ મુબારક હો. આપ વાંચતે ગાજતે પરિવાર સહિત ગોકુલમાં બિરાજો. ત્યારબાદ શ્રી ગોકુલનાથજી ગોકુલમાં આવ્યા અને 20 વર્ષ સુધી ગોકુલમાં રહ્યા. ત્યારબાદ તે લીલામાં પધારી ગયા. આપણે જો શ્રી ગોકુલનાથજીના સેવક છીએ તો આપણે હંમેશા માળા અને તિલક કરવા જોઈએ. ગૌદાન સમાન બીજું કોઈ દાન નથી. શ્રી અમનાજી સમાન બીજું કોઈ તીર્થ નથી અને તુલસી સમાન બીજું કોઈ ઉત્તમ પત્ર જ નથી. प्रभु ने दीनी माला श्री विठल नाथ ने संभाली है. जो मार्ग को था जानी अब श्री गोकुल नाथ को पधराई है. यह माला सौभाग्य स्वरूप सदा सुखरूप संभाली है. शीश जाए पर यह माला न जाए, ऐसी माला तिलक की टेक दृढ़ राखी है. स कहीशो तो न करीशो वेद पुराण भाखी. माल तिलक जनेऊ के कारण एडन पेडन नाखी. श्रीपद कहे जहांगीर के खान, जेते उमराव तेते सब साखी. श्री गोकुलनाथ जू श्री विठलनाथ जू के श्री गोकुलनाथ जू सब हिंदू की पत राखी. श्री गोकुलनाथ रमे जी हमें क्यों श्री विठलनाथ को नाम उजारो. हाली मवाली करे प्रणाम, श्री गोकुलनाथ नाम समारो. जहांगीर कहे जो बिराजो है जहाँ आनंद स्वरूप तुम्हारो. प्राण आदि न्या वल्लभ के याते गोकुल काम को पेड़ो ही न्यारो. मारा तिलक ना रक्षण हार ગોકુલનાથ બડે મહારાજ दिल्लीपति को बरचो दियो. વક્ત મનોરથ પૂરો કિયો. जहांगीर को जीत लियो. ચિદ્રુપ को हरा दियो. हिंदुस्तान मेरा देश है, गोकुल मेरी शान. डंडाकार तिलक और तेजस्वी गोकुलेश मेरी पहचान. नाथ की जय. श्री गोकुल. बालकन के द्वारा इतनी सुंदर प्रस्तुति और मंगलाचरण ये सब श्रवण करने के बाद मेरी कुछ इच्छा ही नहीं हो रही है कुछ कहने की अब. और ठीक भी नहीं लगे मुझको. अच्छा नहीं लग रहा है क्या अब ये सब सुनने के बाद. अब और क्या चला मैं. अब ये जब कह रहे थे यहाँ, जब मंगलाचरण ये सब बता रहे थे, प्रसंग सुना रहे थे, एक क्षण ऐसा आया कि जहाँ समय मैं ये सोच रहा था कि ये संस्कार अगर इन बालकन में आज यह अवस्था से लेकर के और आगे पर्यंत अगर रहें तो अपनी युवा अवस्था में ये बालकें क्या निकलेंगे बन के मतलब क्या वैष्णवता को जीतो जागतो साकार स्वरूप अपने सामने ये खड़ो हो जाए अगर योग्य रूप से उनको परवरिश दीनी जाए। और देखो ये संस्कार को यही चमत्कार है, या मैं कहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ये अपने सबन के सामने वो हाथ कंगन को आरसी क्या अपने यहाँ के हैं, ये प्रत्यक्ष है किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए जो आज इन बालकन ने जो बताया हो। तो ये तो सच्ची बात कहूँ तो अपनी नालायकी है
अपन नालायक हैं कि अपन ने योग्य पोषण जो ज्या प्रकार से संस्कार देने चाहिए बालकन को सही दिशा में, वो न दे करके अपन ने आधुनिकता की ये अंधी दौड़ में अपन ने उनको घुसा दिए और उनको अंग्रेज बना दिए भारतीय होने की जगह। तो ये स्थिति आप देखो कि अगर इनको सही पोषण मिले तो अपने रग रग सु ये भारतीय होने के या के दावा अपन को यहाँ आज सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। ये अगर यही ढंग से अगर इनको पोषण दिया जाए, आधुनिकता जितनी अपेक्षित है वो है सबके लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आवश्यक नहीं है, पर यदि वो आधुनिकता को निर्माण जा आधारभूत जो अवसंरचना है, वाकई प्लेटफॉर्म है, वो अगर ये रहेगा तो फिर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। आज मैं एक क्षण के लिए मेरे मन में ये विचार चल रहे थे कि ये चीज़ अगर ये आगे चल करके या कोई सही पोषण मिले या दिशा को, तो ये बालक के अपने लिए खुद के अपने जीवन में कितने स्थिर हो सकें, कितने सुदृढ़ हो सकें कि इनको और कोई अन्य आवश्यक, कोई और आधार की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वैष्णवता में वो ताकत है, वैष्णवता में वो सामर्थ्य है, वो विचारधारा है ये कि जो हर जीवन में आने वाले संघर्ष को सहन करने की क्षमता ये वैष्णवता के संस्कार, हमारी जो संस्कृति है वो दे रही है। आज खूब खूब आनंद आया और मेरे खूब खूब आशीर्वाद हैं कि ये बालकें बस यही प्रकार से पाठशाला में जुड़ करके और आगे श्री महाप्रभु के वाणी के सच्चे उपासक बनेंगे, वो मेरे खूब खूब इनको आशीर्वाद। और जो पाठशाला चला रहे हैं उनको भी मेरे खूब खूब आशीर्वाद कि ये एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, ये बड़ो पुण्य को कार्य है और या के परिणाम तो परोक्ष रूप से अपन को देंगे ही देंगे दादाजी। हाँ नहीं, सच्ची बात है। ये कोई हम लोक संसार में जैसे मेडल्स दिए जाएं, शील्ड्स दिए जाएं, पारितोषिक दिए जाएं, ये कोई ये वो बात नहीं है कि हमको कोई पारितोषिक की हमें अनिवार्यता है या वाकई अपेक्षा है। वो सच्चो इनके आशीर्वाद प्राप्त होने, इनकी कृपा मिलनी, वासु बड़ो जीवन में कोई पारितोषिक नहीं हो सके अपने लिए, तो सबसे बड़ी बात वो है। और ये सब कार्य, ये सच्चो कार्य है, ये ठोस कार्य है कि जो अत्यंत आवश्यक है समाज के लिए, या चीज को पोषण देना चाहिए। और मैं तो सभी अपने श्री गोकुलेश चरण शरण अनुरागी सेवक वैष्णवन को कहूँगा कि अपने घर में ये नियम बनाओ कि बालकन को आप या पोषण के लिए ये पाठशाला में भेजो, ये जरूरत है। यहाँ गोधरा में जितने अपने हैं उनको आज कहीं अपन को, जैसे आज मैंने एक क्षण मुकु ये विचार आयो, ऐसे आप सब लोगन के हृदय में ये चीज़ भावना उमड़नी चाहिए, ये विचार आने चाहिए कि नहीं कल की तारीख से हम बालकन को जो है पाठशाला में ले जाएंगे, उनको भेजेंगे और हम स्वयं भी पाठशाला में जुड़ेंगे। क्योंकि सच्चे संस्कार तो ये हैं, और ये अगर बन गए हो तो फिर आगे फिर कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है। तो वास्तव में खूब खूब आशीर्वाद और धन्यवाद के पात्र हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य को कार्य है। अस्तु, आज चूंकि पाठशाला, हाँ तो वचनामृत के हेतु से आयो नहीं हो तो चिंता मत करो, यहाँ हम लोग कोई घंटा डेढ़ घंटा नहीं बैठने वाले। मेरी बात मात्र 10 मिनट की है, सो 10 मिनट पूरा हो जाएगा। ये भी आग्रह वाणी को तो या लिए रखे हैं क्योंकि गुरुजी की आज्ञा हुई है कि जब भी अपन मिलें, अपन घर के दोनों पक्ष हैं, आचार्य पक्ष और शिष्य सेवक पक्ष, तो जब हम मिलें तो ये हमारा परिवार है, और परिवार में जब बैठ करके सब चर्चाएं तो होती रहें, खुले दिल से अपन चर्चा करें। या लिए श्री महाप्रभु हमारा मिलनो वाकई सार्थकता ये है कि श्री महाप्रभु की वाणी को भगवत वार्ता हुए, भगवत कथा हुए, या कि हम बात करें वही सच्ची या सच्चो या की सार्थकता है। अस्तु, आज चूंकि विषय बालकन के द्वारा ही हुआ है और पाठशाला नहीं या को श्री गणेश कियो है आज के, या मंगल जो मैं लेकर के आया हूँ सूचना, ये आमंत्रण, तो उनके लिए ही थोड़ा बहुत मैं आज पाठशाला के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ही आज को मेरा एक 10 मिनट को छोटा सा वक्तव्य है। आप सब लोग केवल सुनियो, मेरे मुख्य श्रोता आज के ये मेरे बच्चाएं हैं जो बालक हैं उनके लिए है। थोड़ा परिचय दूंगा, है क्लिष्ट पर प्रयास करेंगे कि याकू आप समझ सको। आज मैं थोड़ा जो मैं 2-3 जगह में बोल करके आया हूँ, श्री महाप्रभु की वाणी को परिचय मैं इन बालकन को देना चाहूँ।
समझ में आवे तो ठीक है, नहीं समझ में आवे तो ज़्यादा चिंता नहीं, वो फिर पाठशाला के जो जितने जो शिक्षक हैं वो वाकू सरल बना देंगे आपके लिए। बहुत से जो लोग हैं उनको भी ये नई बातें ख्याल में आएंगी। हमारे मार्ग में साहित्य को अपनो एक विशिष्ट स्थान है। जब हम संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय को मतलब है ब्रह्म विद्या को दान, ब्रह्म विद्या को उपदेश। वो ब्रह्म विद्या क्या है? वो है तत्व ज्ञान। और वो ब्रह्म विद्या को दान गुरु और शिष्य की परंपरा से आज दिन तक अपन को प्राप्त हो रहा है। ये संप्रदाय की एक सामान्य समझ है। वको सोर्स क्या है, वको स्रोत क्या है? वो स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। वो देवाधिदेव हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा वो ब्रह्म विद्या को दान गुरु शिष्य परंपरा सु आज तक जो अटूट रूप से प्राप्त हो रहे है वाको अपन संप्रदाय कह रहे हैं। जैसे आज कई लोग आज अपने यहाँ दीक्षा को जो कार्यक्रम हो तो आज कई कितने बालकन ने कंठी ली आंसू? हाँ, पाठशाला के आज जो आज कंठी ली थी ना। अब वो कंठी क्या है? वो कंठी भी वो ही ब्रह्म विद्या को उपदेश है, वो ब्रह्म विद्या को दान है। या लिए हमारे समय में, प्राचीन समय में लोग कहते थे कि हमने दान आपो, तो दान आपो शेनु दान आपो? मंत्रनु दान आपो। तो आज जो हमने दीक्षा ली वो अष्टाक्षर महामंत्र की दीक्षा है। 8 अक्षर हैं, श्री कृष्ण शरणम म। ये 8 अक्षर हैं जो अष्टाक्षर महामंत्र है हमारो, वाको हमने दान दियो। वो दान ही मूल उपदेश है। ये जो आज हम बैठ करके जो गुरुमुख सु हमने मंत्र को श्रवण कियो और गुरु के द्वारा जो दान दियो गयो, मंत्र को दान दियो, जो दान हमने ग्रहण कियो, या लिए हम माता पिता और गुरु के कभी ऋण को चुका नहीं सकें। अपन के यहाँ कहे ना कि हम माता पिता को क्या ऋण चुका सकेंगे, तो गुरु को भी ऋण नहीं चुका सकें। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ो दान दियो है उनके, मंत्र को दान दियो है। वो हमारे संस्कार हैं। जैसे द्विज के लिए, ब्राह्मण के लिए द्विजत्व प्राप्त करनो, गायत्री को उपदेश होनो, गायत्री के उपदेश सु दीक्षा सु संस्कृत जब हो रहे हो तो वह को दूसरो जन्म माने। ऐसे अपनो आज सच्चो जन्म है, क्योंकि हमको वैष्णवता के संस्कार दिए गए। यही संप्रदाय है, यही संप्रदाय है जो श्री प्रभु सु अपन को ब्रह्म विद्या प्राप्त भई है। वो गुरु शिष्य परंपरा सु आज गुरु के माध्यम सु वो शिष्य को वो दान दियो गयो, वो प्राप्त भयो। तो वो गुरु शिष्य की परंपरा ये अटूट रूप से चल रही है और यही मूल उपदेश है। वो जो अपन ब्रह्म विद्या को दान जब जा समय दियो जा रहे हैं, मंत्र श्रवण जब हम कर रहे हैं, मंत्र को दान प्राप्त कर रहे हैं, वो भले ना 1 मिनट को वो समय की गणना से अगर देखें तो वो सिर्फ 1 मिनट को जो है वो समय है कि जब वो महामंत्र को श्रवण कराया जा रहे हो, पर वो ही मूल उपदेश है। सच्चो उपदेश यही है। या के बाद ये उपदेश प्राप्त करने के बाद, ये दान प्राप्त करने के बाद आजीवन, पूरे जीवन जितने भी अपन घंटाएं जो है वो या में व्यतीत करेंगे ये भगवान मार्ग पे, ये अध्यात्म के मार्ग पे, भगवत चिंतन पे, श्री प्रभु के नाम स्वरूप गुण लीला को अहर्निश जो श्रवण मनन चिंतन कीर्तन कर रहे हैं, वो सबको सब ये मूल उपदेश को एक्सटेंशन है। मूल उपदेश तो आज हो गए जब हमने दीक्षा ली वा समय। जैसे अपनो शरीर है तो शरीर में अपने हाथ और पांव, ये शरीर के एक अंग है, वाके एक्सटेंशन है। ऐसे ही ये जो जितनों भी अभी आसन में बैठ करके अपन श्रवण कर रहे हैं, ये सब वो मूल उपदेश जो आज सवेरे आप लोगों ने जो बालकन ने जो कंठी ली नहीं, वाको सारो ये एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन जीवन पर्यंत चलने वालों है। तो ये मूल ब्रह्म विद्या को दान है। ये संप्रदाय में, हर संप्रदाय में ये वाणी को महत्व है, क्योंकि संप्रदाय में वो जो परम तत्व है, जो परम सत्य है, वाको दिग्दर्शन कराया जा रहा है। जा दर्शन को प्राप्त करके और जीवात्मा व परमात्मा को प्राप्त कर सके। तो ये पूरी जो कहानी है हर संप्रदाय की वो यही है कि कैसे जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गया और पुनः वह श्रृंखला में वह कड़ी सु कैसे जुड़ जाए,
वो हर संप्रदाय में अलग अलग प्रकार सु जैसे भगवत प्रेरणा भई उनको वा प्रकार सु उनने वाको प्रतिपादन कियो उन आचार्यन ने तत्त संप्रदाय के आचार्यन ने। एकम सत विप्राह बहुधा वदंती, सत्य एक ही है पर वह एक सत्य को जो संत महापुरुष महात्माएं हैं उन ज्ञानी महात्मान ने अलग अलग प्रकार से को स्वरूप वर्णन कियो है। क्यों अलग अलग कियो है? क्योंकि भगवान की स्वयं आज्ञा है कि या प्रकार से मेरे स्वरूप को वर्णन करो, या लिए वो अलग अलग प्रकार से कोई कुछ कह रहे हो, कोई कुछ कह रहे हो, कोई कुछ कह रहे हो, पर अंततोगत्वा वो सब कुछ जो भी प्रणयन या जो भी बात कही जा रही है वो सब संप्रदाय की चौखट में रह करके कही जा रही है। या लिए सच्चो विकास वह संप्रदाय के अनुसार ही हो सके। हमारो धर्म पुष्टि मार्ग को है, हमारो संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय कहो जाए, और वो वल्लभ संप्रदाय को ही दूसरो नाम है पुष्टि मार्ग। जाकि आज अभी कुछ चर्चा करी ने कि पुष्टि एटले शू, पुष्टि मार्ग एटले शू। तो पुष्टि एटले श्री प्रभुनी कृपा, अनुग्रह, पोषण, तो वो अपने धर्म को नाम है। हमारे धर्म को कैसे समझ सकें हम, वाको जानने को एक ही तरीका है कि ये मार्ग के जो प्रवर्तक हैं जिनने ये मार्ग प्रकट कियो है उनके वाणी को अभ्यास करनो। ये मार्ग के संप्रदाय के अपने संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? श्री महाप्रभु। ठीक है, श्री महाप्रभु के वाणी के माध्यम से अपन अपने संप्रदाय को समझ सकें। अब वो वाणी क्या है, वाको स्वरूप मैंने अभी 2 दिन पहले ही ये चलाया हो। तो श्री महाप्रभु की वाणी बहुत बड़ी है, वाको विस्तार बहुत है, और मूल रूप से वो वाणी को 5 विभागन में वाको वर्गीकृत करिए हैं। कितने विभाग? 5। पहलो पार्ट है निबंध। क्या? निबंध। दूसरो है भागवत व्याख्या। क्या है? तीसरो है भाष्य। तीसरा विभाग क्या है? भाष्य। चौथो विभाग है प्रकरण ग्रंथ। प्रकरण ग्रंथ, प्रकरण ग्रंथ। और 5वां और अंतिम विभाग है प्रकीर्ण ग्रंथ। प्रकीर्ण, बोलो फिर सु, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण ग्रंथ। ये 5 विभाग हैं कि जा विभाग में अपन ने कैटेगराइज कर दिए श्री महाप्रभु के ग्रंथन को। जैसे अपन कॉलेज में जाएं, कोई भी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो विश्वविद्यालय में अनेक फैकल्टी होंगे कि नहीं, अनेक डिपार्टमेंट होंगे। ऐसे ही जब श्री महाप्रभु के ग्रंथन को अब हम समझने बैठेंगे तो श्री महाप्रभु के वाणी को हम ये 5 वर्ग में हम वर्गीकृत कर सकेंगे। पहलो निबंध, दूसरो भागवत व्याख्या, तीसरो भाष्य, चौथो प्रकरण ग्रंथ और 5वां प्रकीर्ण ग्रंथ। ये 5 विभाग हैं। 5 में से जो पहला विभाग है वो है निबंध। ये निबंध के फिर आगे चल कर के 3 विभाग और हो रहे हैं, शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ। कौन कौन से? शास्त्रार्थ, सर्वनिर्णय और भागवतार्थ। शास्त्रार्थ के 105 श्लोक। कितने? 105। सर्वनिर्णय के लगभग 325। कितने? 325 श्लोक। और भागवत संपूर्ण भागवतार्थ संपूर्ण भागवत पे उपलब्ध है। तो ये पहला विभाग निबंध। दूसरा विभाग है भागवत व्याख्या। तो श्रीमद् भागवत, कोई को ये मालूम है पाठशाला में ये बताया है कि अपने यहाँ 4 प्रमाण कौन कौन से हैं? नहीं बताया। अच्छा, अभी आगे की कक्षा है। ठीक है, तो शिक्षक हैं, उनकी शिक्षा करें। चलो पहले आप बताओ, जो शिक्षक हैं। हाँ, वे एक वेद, ब्रह्मसूत्र, गीता और श्रीमद् भागवत, ये 4 अपने मूल प्रमाण हैं जिन प्रमाणन पे अपनो मार्ग रूपी जो भवन है ये खड़ो है। ठीक है, ये 4 प्रमाण हैं। सबसे पहले हमारे वेद, फिर दूसरे नंबर पे ब्रह्मसूत्र। ये ब्रह्मसूत्र क्या है? ब्रह्मसूत्र वो हैं, ये सूत्र हैं। सूत्र को तात्पर्य ये है
कि जब कोई विधा, शास्त्र की कोई जो विधा है, वह विधा को के सिद्धांतन को जब सूक्ष्म रूप से आप कहने लग जाओ, वह को नाम है सूत्रीकरण की प्रक्रिया। क्या? सूत्रीकरण। सूत्रीकरण मतलब गागर में सागर। आज जैसे मेरे कुछ सिद्धांत हैं, मेरे सिद्धांतन को मैंने 2 शब्द या 3 शब्द में कह दियो, मतलब क्या है कि मैंने अपने सिद्धांतन को सूत्रीकरण कर दियो। तो जो शास्त्र में अपने यहाँ अनेक अनेक विधाएं हुई हैं, चाहे फिर वो सांख्य है, योग है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, मीमांसा है, भक्ति है, व्याकरण है, बहुत सारी अनेक अनेक विधाएं हैं। एक समय है तो अपने भारत में कि जब तत्त शास्त्र के ये विधान के जितने भी विद्वान हैं, उनने अपने सिद्धांतन को सूत्र में गठित कर दिए। जैसे माला, मोती जो है वो अपन सूत में अपन जैसे पिरो दें ना और एक माला बना दें, ऐसे उनके सिद्धांतन को उनने गागर में सागर के रूप में, शास्त्र तो बहुत विशाल है, पर वो विशाल को भी जब अपन 2 अक्षर में वाकू समेट के ले आ रहे हैं तो वो भयो सूत्र। या लिए जो वेद में जो कुछ बातें कही गई हैं, उनको जब हमने सूत्र बना दिए तो वो भगवान वेद व्यास, जिनने श्रीमद् भागवत प्रकट करी, भगवान वेद व्यास, उनने ये नक्की किया कि मैं वेद के ये जो स्वरूप है, वेद में जो कुछ भी चिंतन है, या चिंतन को मैं सूत्रीकृत कर दूं, वाकू 2 अक्षर में या 2 शब्दन में या 3 शब्दन में वाकू समेट लूं, और वो बना दी। वो समेट करके उनने जो रचना करी, वह रचना को नाम है ब्रह्म सूत्र। तो सर्वप्रथम वेद, दूसरो ब्रह्म सूत्र, तीसरो गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये उपनिषद है, और चौथो अंतिम श्रीमद् भागवत, ये महापुराण है। तो ये 4 जो है अपने आधार हैं। इन चारों के आधार पे अपने भवन की श्री महाप्रभु ने रचना करी है। ये पुष्टि मार्ग जो है या को आधार, ये 4 हैं। तो भागवत की हम बात कर रहे थे, तो भागवत व्याख्या में जो दूसरा विभाग है, वह भागवत व्याख्या में क्लासरूम ऐसे ही हो हैं, क्लासरूम में बगासा आने की संभावनाएं बहुत हो हैं, क्योंकि हम सब स्कूल कॉलेजेस में पढ़े हुए हैं। बहुत कम लोग हों कि जिनको पढ़ाई में रुचि होए, सो क्लासरूम ऐसे ही चलें। दूसरा विभाग है भागवत व्याख्या। वो भागवत व्याख्या 2 हुई, एक सूक्ष्म टीका और एक श्री सुबोधिनी जी। सूक्ष्म टीका आज अवेलेबल अपने पास है नहीं है। एक किंवदंती है कि कहीं जब श्री महाप्रभु पृथ्वी परिक्रमा में पधार रहे थे तो वहाँ वो ग्रंथ कहीं छूट गयो, अब आज अपने पास वो अवेलेबल नहीं है। तो सूक्ष्म टीका एक ये है, और एक श्री सुबोधिनी जी है। श्री सुबोधिनी जी भी अपन के पास पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है। बाकी कितने स्कंद अवेलेबल हैं? और दशम, 1, 2, 3, 10, यहाँ पे ज्यादा विशेष कार्य हो गया। तो ये श्री सुबोधिनी जी है। तो भागवत व्याख्या ये 2 ही। अब तीसरे नंबर पे जो आया वो विभाग है भाष्य। सो 3 भाष्य प्रकट भय हैं, गायत्री भाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य और उत्तर मीमांसा भाष्य, जाको नाम है अणु भाष्य। ये 3 भाष्य अपने यहाँ प्रकट भय हैं। दुर्भाग्य सु पूर्व मीमांसा भाष्य भी आज अवेलेबल नहीं है। वो भी शायद यही कहानी है कि उन्हीं के समय में, श्री महाप्रभु के समय में कहीं पृथ्वी परिक्रमा कर जब पधार रहे थे तो कोई स्थल विशेष पे वो छूट गया, रह गया, तो वो रह गया, आज अपने पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ निबंध में एक जगह इतने वर्णन, इतनो एक लाइन मिल रही है, एक पंक्ति मिल रही है श्री महाप्रभु की कि आ विषय में विस्तार पूर्वक मारा पूर्व मीमांसा भाष्य में समझाव्યું છે। તેથી જે લોકોને વિશેષ જિજ્ઞાસા હોય આ વિષય સમજવા માટે, એ લોકો ત્યાંથી એને સમજી લે। આ સ્વયં પોતાના વાક્યથી આટલું લખ્યું છે શ્રી મહાપ્રભુએ। તેથી આપણે અનુમાન લગાડીએ છીએ કે શ્રી મહાપ્રભુએ પૂર્વ મીમાંસા ભાષ્યની રચના કરી હશે, પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આજે આપણી પાસે અવેલેબલ નથી। सो गायत्री भाष्य और अणुभाष्य, उत्तर मीमांसा भाष्य, ये 2 भाष्य अपने पास अवेलेबल हैं। अब चौथो विभाग आयो प्रकरण ग्रंथ। वो प्रकरण ग्रंथ मतलब षोडश ग्रंथ। प्रकरण मतलब
जो एक विषय को पर्टिकुलरली एक विषय को डील करते हो और एक विषय के बारे में समझाया जाए, वाकू हम कह रहे हैं प्रकरण ग्रंथ। जैसे षोडश ग्रंथ में हर ग्रंथ कोई एक विषय को डील कर रहे हो, एक विषय को समझा रहे हो। जैसे बाल बोध शास्त्र को संग्रह है और कोई बात नहीं है। सिद्धांत मुक्तावली श्री महाप्रभु ने अपने सिद्धांतन को वहां में प्रकट किए हैं और कोई तीसरा विषय दूसरा विषय नहीं है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा, वहां में पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग क्या है वाकी स्पष्टता करिए। वह दुर्भाग्य से ये भी अपने पास अपूर्ण है। वहां में और पुष्टि को तो वर्णन मिल गया, प्रवाह और मर्यादा को वर्णन नहीं मिल पाया, तो वो भी अपूर्ण ग्रंथ है। तो पुष्टि प्रवाह मर्यादा में पुष्टि मार्ग, प्रवाह मार्ग और मर्यादा मार्ग क्या है, बाकी स्पष्टताएं हैं। सिद्धांत रहस्य में एक आत्मनिवेदन करने वाले व्यक्ति की जीवन शैली, जीवन प्रणाली कैसे होनी चाहिए, वो आचार पक्ष पे भार दियो है और समझायो है कि समर्पण कैसे दूषित नहीं हो सके, वो समझ अपन को सिद्धांत रहस्य में दे दी। या के सामने नवरत्न, एक आत्मनिवेदन करने वाले व्यक्ति को क्या प्रकार को मानस गढ़ना चाहिए, वो मानस वकु कैसो कल्टीवेट करना चाहिए, वो तत्व विचार जो है वो नवरत्न में समझायो। या लिए जो लोग समर्पित हैं उनके लिए ये दोनों दो आंखें हैं, सिद्धांत रहस्य और नवरत्न। जो लोग समर्पित हैं उनको दोनों को अभ्यास जरूरी है। एक रहेगा तो जैसे एक दृष्टि है एक साइड की और एक साइड नहीं है, और यही लिए ये समस्याएं आ रही हैं। लोग जैसे जो सब सेवा कर रहे हैं, सेवा के लिए आ रहे हैं कि जैसे हमने सेवा करवी छे, पर फिर वो कहाँ बात अटक जा रही है कि दूध घर मिश्री दैट्स ऑल, वाके बाद आगे बढ़ नहीं रहे हैं। ये क्यों मान के चल रहे हो कि सबको सेवा करनी ही है? ये जरूरी नहीं है। सबके लिए सेवा है भी नहीं, सबके लिए सेवा नहीं है। ये बात ज्यादा अपन समझ जाएंगे, वादिन शायद अनावश्यक तकलीफन से अपन मुक्त हो जाएंगे। या लिए ये जरूरी है समझना, अगर करो तो सही ढंग से करो आपको समझ करके, और वो आप जीवन में अवकाश पैदा करो कि ताकि हम ये चीज़ कर सकें। और नहीं करना है तो याकू अपनाओ मत, और भी एक कुछ दूसरी अपने पास साधना प्रणाली है जाकू सोच समझ करके हम आगे बढ़ सकें। तो ये बातन को ज्ञान अपन को सिद्धांत रहस्य और नवरत्न में से मिल रहा है। विवेक धैर्य आश्रय, विवेक क्या है, धैर्य क्या है, आश्रय क्या है, वही को डील कर रहे हैं। निरोध लक्षण, निरोध को क्या स्वरूप है वो समझाया जा रहे हो। संन्यास निर्णय, अपने मार्ग में त्याग की क्या परिभाषा है और त्याग क्या हेतु से करना चाहिए, त्याग को क्या स्वरूप है, वो निरोध लक्षण संन्यास निर्णय में समझाए हुए। पंचपद्यानी और जलभेद या में श्रोता और वक्ता के लक्षण दिए गए। तो हर विषय एक भक्तिवर्धिनी भक्ति कैसे दृढ़ करी जाए वह विषय को समझा रहे हो। तो एक पर्टिकुलर विषय है, वाके अलावा और कोई चर्चा नहीं है, सो वो प्रकरण ग्रंथ है। और लास्ट में जो एक कैटेगरी है वो है प्रकीर्ण ग्रंथ। प्रकीर्ण मीन्स मिसलेनियस, असॉर्टेड, जो कोई जगह नहीं होवे, वाकू जो इनमें कैटेगराइज नहीं हो रहे हैं उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी और वहां में उन ग्रंथन को रख दिए। वाकू मिसलेनियस या अपन ने असॉर्टेड कह दिए। वो पुनः आगे चल के वहां में दो विभाग किए, वाद अंग और भक्ति अंग। तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो वादात्मक शैली में लिखे गए हैं। वाद मतलब कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वाद मतलब एक स्वस्थ पटल पे, प्लेटफॉर्म पे एक शास्त्र के कोई भी विषय की एक स्वस्थ चर्चा करनी। आपस में जब दो व्यक्ति कोई चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा या प्रयोजन सु करनो कि हम कोई एक निर्णय पे आ सकें। केवल वाद विवाद करने की बात नहीं है या वितंडा करने की बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा की बात नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा में तो कहीं कोई प्रयोजन है ही नहीं है। पर जब वो प्रयोजन स्पष्ट है कि हम कोई निर्णय पे जब चर्चा कर रहे हैं, वो है वाद। तो जैसे पत्रावलंबन, तो पत्रावलंबन श्री महाप्रभु को वो ग्रंथ है कि जो वादात्मक शैली से प्रकट किए गए है। दूसरा विभाग है भक्ति अंग। तो कुछ ग्रंथ ऐसे हैं कि जो भक्ति की कैटेगरी में कैटेगराइज हो रहे हैं। उनमें फिर पुनः तीन विभाग कर दिए, नाम, रूप मतलब स्वरूप और लीला, ये तीन विभाग हैं, नाम, स्वरूप और लीला। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं श्री महाप्रभु के कि जो नाम पाठ के लिए हैं, जैसे पुरुषोत्तम सहस्र नाम, तो ये नाम पाठ के लिए है। और जो दूसरा है रूप यानी स्वरूप, तो स्वरूप वर्णन के लिए जितने भी अपने यहाँ के प्रायः जो अष्टकन की रचना भई वो सब स्वरूप वर्णन के लिए हैं। जैसे यमुनाष्टक
परिवृढ़ाष्टक, मधुराष्टक, गोपीजन वल्लभाष्टक इत्यादि जितने भी अष्टकन की रचना है वो प्रायः अपने यहाँ स्वरूप वर्णन के लिए हुई है। और तीसरी कैटेगरी यहाँ में है वो है लीला चिंतन। तो त्रिविध लीला नामावली जो है वो लीला चिंतन के हेतु से है। सो ये श्री महाप्रभु की वाणी के ये विभाग है। सर्वप्रथम सबसे पहला विभाग क्या? निबंध। दूसरो भागवत व्याख्या। तीसरो भाष्य। चौथो प्रकरण ग्रंथ। और पांचवो प्रकीर्ण ग्रंथ। फिर सु पहलो विभाग निबंध, दूसरा विभाग भागवत व्याख्या, तीसरा विभाग भाष्य, चौथा विभाग प्रकरण ग्रंथ, पांचवा विभाग प्रकीर्ण ग्रंथ। अब पंडित हो गए और अब क्लासरूम के आगे के स्टेज में जाने के लिए तैयार हो। नाउ यू आर प्रमोटेड। तो ये 5 विभाग हैं या के ऊपर। ये सिर्फ श्री महाप्रभु को ग्रॉस क्लासिफिकेशन है। और यहाँ पे और अन्य आचार्यन की कोई के व्याख्यान या टीका या और कोई अपने प्रकाश इत्यादि कोई की हमने बात नहीं करी है। सिर्फ प्योर श्री महाप्रभु की वाणी है ये। और यह परिचय मैंने यालिए दियो है कि एक तो बालकन को ख्याल में आवे और जो सब बड़े हैं उनको ये ख्याल में आवे कि अपनो मार्ग कितनो डीप है। ये केवल ऐसा मार्ग नहीं है कि अपन बैठ करके झांझ मंजीरा बगा कर दिए या मंदिर गए, मंदिर में जाकर के खाली दर्शन कर दिए और प्रसाद लेकर के आ गए। नहीं, देयर इज मच मोर टू इट। या में बहुत कुछ है यहाँ मार्ग में जो समझने की आवश्यकता है। ये खाली वाको एक मैंने आपको एक परिचय कराया हुए। हमने अपने गुरुजनन को ये सुनते हुए देखे हो कि हमारो एक जीवन तो अब ये प्रमाण पक्ष को विचार करते निकल गयो। अब जब दूसरो जन्म हम लेंगे तब या श्री महाप्रभु की वाणी को जो प्रमेय पक्ष है वहाँ पे हम विचार करेंगे। तो पूर्व के जो अपने विद्वान गुरुजन हते उनकी उक्ति हती, वो ऐसो कहते। तो अब आज तो कहाँ है? आज तो इतना है कि अगर अपन स्कैनर में जैसे स्कैन करते रहे अपन डॉक्यूमेंट्स, ऐसे अगर श्री महाप्रभु की वाणी को केवल स्कैन भी कर जाएं, सबके सब अक्षर एक बार अपनी नजरअंसू देख जाएं, समझने की बात तो बहुत आगे है, पढ़ने की बात भी बहुत दूर है। केवल उन अक्षर को अगर अपन अपनी नजर से फेर दें तो यूँ समझो कि बहुत बड़ी कृपा हो गई। इतनो साहित्य अपने धर्म में है और वाके बावजूद अपने घर में 2000 घंटा को अपनो खुद को श्री गुरुदेव के वचनामृत अब पेन ड्राइव में अवेलेबल हैं। कितने घंटा? 2000 घंटा को साहित्य अपने पास अपने गोकुलनाथ जी के घर को अपनो खुद को है। गुरुदेव के वचनामृत जो इतने वर्षन में भये हैं वो अहमदाबाद के सारे युवा सेवक वैष्णवन ने वाकूब मेहनत करके और पिछले 5-7 साल में ये करके पूरा कंपाइल करके और 2000 घंटा तैयार कर दिए। 2000 घंटा कायकू के हैं, कोई मजाक नहीं है ये ख्याल है तो आपको कि अपने यहां 2000 घंटा के अवेलेबल है साहित्य? नहीं ख्याल है तो हाँ के ना? कोई ख्याल नहीं है। हाँ, वो इक्का दुक्का जो घर से परिचित हैं जुड़े हुए उनकी बात नहीं कर रहे, पर बहुधा ये चीज अनुपलब्ध है, लोगों को ख्याल भी नहीं है ये। या लिए अपने घर को परिचय आवश्यक है कि ये अपने जो गले में कंठी पहन रहे हैं, जिनके घर की अपन कंठी पहन रहे हैं, उनके घर को आप कितना जान रहे हो? जा में अपनी सांसें चल रही हैं रात दिन 24 घंटा 365 अपन की जो अपनी सांसें चल रही हैं, जा चीज के साथ गले में जुड़ी हुई हैं, वो जा घर की कंठी है, वह घर को कितना जान रहे हो? वह को परिचय लेने की ये बात है कि अपने घर में क्या क्या चीज चल रही है। या लिए टिप्पणी भी अनिवार्य है। टिप्पणी कोई कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर और डायरी है तो मिलती रहे। मुझको हर साल प्रकाश भाई LIC की जो है वो मुझको डायरी है थमा दे, मैं सामने से कहूँ भाई आप जो मने, तो वो 5-7 कैलेंडर और 5-7 मुझको डायरी देते हैं। तो ये डायरी नहीं है वो तरीका की। टिप्पणी डायरी या कैलेंडर होते हुए भी कुछ वासु ज्यादा है, विशेष है। और या लिए अपने घर के जितने भी सेवक वैष्णव हैं उनके घर में टिप्पणी होनी अत्यंत आवश्यक है। अगर जो युवा वर्ग उनको अगर टिप्पणी देखना नहीं आ रहे हो, सिर्फ 2 मिनट की बात है टिप्पणी समझनी, पर वो अपने आदत में लाओ वह चीज को, क्योंकि टिप्पणी ही एक अपने गोकुलनाथ जी के घर के साथ को साक्षात परिचय है, डायरेक्ट या को परिचय है।
अगर टिप्पणी देखोगे तो अपने घर में क्या है, अपने घर की संस्कृति क्या है, अपने घर में कौन से उत्सव मनाए जा रहे हैं, क्योंकि वही तो अपन है। हमारी जो जीवन प्रणाली है, हमारे संस्कार हैं, वही तो हम हैं। आप जब अपनो परिचय दे रहे हो कि हमें फलाना फलाना श्रीमाणी, यहां तो श्रीमाणी है ना सब, हमें फलाना फलाना श्रीमाणी वैष्णव, तो जब फलाना फलाना श्रीमाणी वैष्णव जब अपने आप को आप कह रहे हो तो अपनी पहचान जो दे रहे हो, क्योंकि हम कोई एक चीज को स्वीकार रहे हैं, एक संस्कृति को हम आचरण कर रहे हैं, या लिए हमारी पहचान हम या प्रकार से दे रहे हैं। जो चीज अपन सबन को एक सूत्र से बांध रहे हो है, वो है हमारी सच्ची पहचान क्या है। अबे कया घरना वैष्णव छे? श्री गोकुलनाथ जी ना घरना सेवक वैष्णव छे। आनाथी मोटी आपणी ओळखाण नथी। જ્યારે અહીંયા બેસ્યા છીએ, અહીંયા શ્રીમાળી કે વિશાનીમાં કાંઈ ના ચાલે, એ બધું ત્યાં બહાર મૂકીને જ આવવું પડે। અહીંયા એક જ ઓળખાણ ચાલે અને એ છે શ્રી ગોકુલનાથજીના ઘરના સેવક વૈષ્ણવ। આનાથી મોટી કોઈ ઓળખાણ નથી। હા, તમારું સામાજિક કોઈ કાર્યક્રમ હોય અને સમાજની કાંઈક મીટિંગ હોય કે હોય, એમાં 50 નહીં 500 વાર શ્રીમાળીની જયકાર અને વિશાનીમાની જયકાર કરજો, કોઈને કોઈ આપત્તિ નથી। पर જ્યારે આપણે શ્રી દાદાજીના ઘરની વાત કરી રહ્યા છે, અહીંયા કોઈ જ્ઞાતિ કોઈ જાતપાત નથી, બધા સરખા છે, બધા સેવક છીએ આપણે શ્રી ગોકુલનાથજીના, તે સિવાય આપણી કોઈ ઓળખાણ નથી। ये टिप्पणी या लिए आवश्यक है कि हमारे घर में क्या है, उत्सवन क्या चल रहे हैं, पूरे वर्ष में कौन कौन से उत्सव आ रहे हैं, अपने यहाँ जो तीज त्योहार हैं वो कैसे मनाए जा रहे हैं। ये टिप्पणी आ गई या मैं कुछ निर्णय दे दियो कि आज ग्रहण में आ रीते थशे, अथवा डोलोत्सव अपना त्या आ रीते, होड़ी अपना त्या आ रीते उजवाशे, ये कोई ऐसे ही लिख नहीं दियो जा रहे हो। आपको पता है कि हम जब टिप्पणी को अपने घर में निर्माण हुए तो कितने हमें दिन लगे वो निर्णय और वो सब जब करें। कम से कम हर निर्णय के पीछे घंटान तक हम लोग शास्त्र की सारे ग्रंथ लेकर के बैठे, पंचांग लेकर के बैठे, वाके बाद शास्त्र के जो प्रक्रिया ग्रंथ हैं, जो लक्षण ग्रंथ हैं, ये ज्योतिष इत्यादि के, उनको लेकर के बैठे, जो धर्म के लक्षण ग्रंथ हैं, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु, वो लेकर के बैठ रहे हैं। अपने यहाँ के जो प्राचीन जो विद्वान आचार्य हुए हैं, श्री पुरुषोत्तम जी महाराज इत्यादि, उनने जो व्रतोत्सवादि पर्व निर्णय और उत्सव प्रतान इत्यादि जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथन में जो मितिन को और तिथिन को और नक्षत्रन को और यात्रा उत्सव पर्व इनके निर्णय दिए, वो निर्णय वो पुस्तकें लेकर के बैठ रहे हैं। एंड फाइनली ये सबके साथ जब वाकी कॉरोलरी अपने गोकुल के घर की सेवा प्रणालिका, वो प्रणालिका के आधार पे फिर वहां में जो कुछ विशेष निर्णय लिए हैं, ये सबको मिश्रण करके और फिर अपनी टिप्पणी को निर्माण हो रहे है। वो कोई की कैलेंडर ला करके और अपन ने लिख दिया और छाप दी और हो गया काम, ये नहीं है। वासु बहुत ऊंचो है। या लिए वो टिप्पणी आवे ने तो टिप्पणी आने के बाद सबसे पहले अपन माथे चढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपने घर की आज्ञा है, अपने घर की व्यवस्था है, अपने घर को आदेश है, अपने घर को स्वरूप है। या लिए टिप्पणी पढ़ के और अपने यहाँ जो कॉफी टेबल जो अपन सोफा में हो वहां में यो करके यो नहीं पटक दी नहीं जाए। वो जो टिप्पणी है वाकू अपन मंदिर या कोई ऐसी जगह वाकू अपन पधरा रहे हैं सही ढंग से, क्योंकि ये साक्षात गुरु की आज्ञा है, ये अपने घर को परिचय है, ये पीठ को आदेश है, ये पीठ की आज्ञा है, ये गोकुलनाथ जी के घर की संस्कृति है। या लिए टिप्पणी एक कैलेंडर नहीं है कि जोई ने अने मूकी दीदी। हर रोज आदत रखो। कैलेंडर मिति वाले मिल ही रहे हैं, फिर भी कितनी देर लग रही है, 10 सेकंड लग रहे हैं, निकाल के देख लियो कि आज मिति, वार और सामने क्या तारीख है या क्या उत्सव इत्यादि को विवरण क्या है, बस वो कर लो। एक 10 दिन देखने की आदत करोगे, 11वें दिन अपने आप वो अभ्यास में आ जाएगा और ख्याल में आ जाएगा। जिनको नहीं आ रहे हो वो टिप्पणी देखने के लिए कितना 2 मिनट लगे, एक बार जस्ट ख्याल में आ जाएगा तो वासु, पर वो अपनी संस्कृति से जुड़े रहोगे। सो टिप्पणी अपने लिए या लिए परम आवश्यक है। ये सब छोटी छोटी बातें हैं। पाठशाला में भी बालकन को टिप्पणी देखने की शिक्षा दो कि टिप्पणी कैसे देखी जाए। अभी शुद्ध करोगे, आदत में करोगे तो वो आदत इनके जीवन भर के लिए पड़ेगी और वो बहुत जरूरी है।
तो ये सब चीज़ें हैं जो ध्यान में देने जैसी है। और महोत्सव तो गोकुल के साथ ही है, महोत्सव को तो कोई विकल्प नहीं है। महोत्सव और गोकुल ये दोनों एक ही है। अभी लूनावाड़ा में बैठक मंदिर में હતો तो वहाँ पे કોઈ વૈષ્ણવ कह रहे थे कि जैसे हमने महोत्सव एक वक्त महोत्सव અહીંયા ઉજવી, મેં કીધું એક શક્ય નથી ને, તમારી બોલાય નહીં આવું, ઉલટું તમને ત્યાં આવવું જોઈએ કે ના મહોત્સવ ઉપર કોઈ પણ ના, મહોત્સવ આપણે અહીં નહીં કરીશું, મહોત્સવની એક જ જગ્યા છે અને એ છે શ્રીમદ ગોકુલ, એટલે તે સિવાય મહોત્સવ કોઈ જગ્યાએ થાય જ નહીં। એટલે મહોત્સવનું વિસ્તાર લોકલ લેવલ ઉપર ના રાખી, એવો આગ્રહ ના રાખી, उत्सव तो उजववा ज जोईए पण छतांय आग्रह गोकुलनो ज राखवो जोईए। ए रीते जे अमुक अमुक जग्याओए आपणा उत्सवो आपणे कर्या छे, गोधरा खाते पण आपणे एवुं कंईक विचारीशुं हवे। तो वो सब अपन बैठेंगे और फिर यहाँ कुछ श्री महाप्रभु की वाणी को भी अपन पान करेंगे। जब जब अवसर मिलेगा अपन कुछ प्रयास करेंगे कि ये हो सके। और अब मूल बात पे जो हेतु सु अपनो ये प्रवास चलो है, सो 25, 26, 27, 27 और 28 लालन को शुभ यज्ञोपवीत प्रस्ताव है, वो लगभग सबको विदित ही है। सो यहाँ गोधरा में जो अपने श्री गोकुलेश चरण शरण अनुरागी सेवक वैष्णव हैं, जितने भी यहाँ घर हैं जो आज यहाँ उपस्थित हैं या कोई कारण से आज यहाँ नहीं आ पाए या बाहर रह रहे हैं और हैं गोधरा के, उन सबको मेरा हार्दिक आग्रह है कि ये 25, 26, 27, 28 बड़ौदा या प्रसंग के लिए आनो है, अचूक रूप से सबको आनो है यहाँ पे। वैसे 4 दिन को कार्यक्रम है, मुख्य 2 दिन है 27 और 28, पर मेरा आग्रह 4 दिन को है कि आप सब लोग वहाँ पे आओ। ये प्रसंग अपने घर को प्रसंग है और ये 25 वर्ष के बाद ये प्रसंग आ रहे हो है। पूरी सृष्टि में एक उमंग है, दादाजी की कृपा से उत्साह है, पूरी सृष्टि इकट्ठी हो रही है। वो कहें नव पल्लव थई श्री बालाजी की सृष्टि जो, तो ये वही क्षण है, ये ऐसे अवसर श्री दादाजी की कृपा से मिले कि जहाँ में ये पूरा एक ये उत्साह को एक तरंग को और ये पोषण को एक तरंग जो है वो पूरी सृष्टि में आवे। सो वो हेतु के लिए सबको वहाँ बड़ौदा आनो है। श्री गोकुल नाथ की जय। रखें आश्रय को पता। दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, साधन और नहीं या कलि में, जासोत निबेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो, दृढ़इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़इन चरणन केरो। जय जय श्री महापुराण कमले बिना, जय श्रीमद गोपीनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद विठलनाथ प्रभुचरण कमले बिना, जय श्रीमद गोकुलनाथ प्रभुचरण कमले बिना। श्री गोकुलनाथ की जय।